السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے زرعی بلوں کے خلاف ملک میں مظاہرے رکے نہیں ہیں۔ دہلی، ہریانہ، پنجاب اور مغربی اتر پردیش جیسے علاقوں میں اس کا وسیع اثر نظر آ رہا ہے۔ پیر کی صبح راج پتھ، جسے دہلی کا مرکز کہا جاتا ہے، نئے بل کے خلاف احتجاج میں غصہ دیکھا گیا۔ یہاں کانگریس کارکنوں نے ایک ٹریکٹر کو آگ لگا دی اور زرعی بلوں کے خلاف احتجاج کیا۔ کسانوں کے قانون کی مخالفت کرنے والے کچھ کانگریسی کارکن پیر کی صبح ٹریکٹر لے کر راج پتھ پہنچے۔ انڈیا گیٹ کے قریب زرعی بلز پر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے ٹریکٹر کو آگ لگا دی۔ دہلی پولیس کے مطابق تقریباً صبح 7:15 پر 15 سے 20 افراد نے انڈیا گیٹ کے قریب آئے اور ایک ٹریکٹر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور ٹریکٹر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہندوستان میں کووڈ-19 مریضوں کی تعداد 60 لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے۔ کورونا پازیٹیو کے 60 لاکھ معاملے رپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک ہندوستان بن چکا ہے۔ امریکہ پہلا ملک ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 82,170 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کورونا وائرس کی کل تعداد 60,74,702 ہو گئی ہے۔ وہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن میں 1,039 لوگوں کی وائرس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ اب تک کل 95,542 لوگوں نے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ راحت کی بات یہ ہے کہ ملک میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کو مات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آنکڑوں کے مطابق اب تک کل 50,16,520 لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ ڈرگ پارٹی کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد این سی پی کے رائڈر پر کرن جوہر نظر آ رہے ہیں۔ بالی ووڈ کا ڈرگز کنیکشن سامنے آنے کے بعد اب کرن جوہر کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ کرن جوہر کی مصیبت ان کی پارٹی کو لے کر ہے، جس کے ویڈیو کو این سی پی نے صحیح بتایا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا اب این سی پی کرن جوہر یا ویڈیو میں دکھنے والے اسٹارز پر شکنجہ کسے گی؟ آل انڈیا تیرتھ پروہت مہا سبھا کے صدر مہیش پاٹھک نے متھرا کی عدالت میں کرشن جنم بھومی زمین سے شاہی مسجد عیدگاہ کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ متھرا کے پرامن ماحول کو خراب نہ کریں۔ پاٹھک نے اپنے ایک بیان میں کہا، انہیں پتہ چلا ہے کہ متھرا کی سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں کرشن جنم بھومی کی زمین سے شاہی مسجد عیدگاہ کو ہٹانے سے متعلق ایک سوٹ باہر کے کچھ وکیلوں نے دائر کیا ہے۔ انہوں نے ان وکیلوں سے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ واپس لے لیں اور یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتے کے بعد یہاں دونوں ہی فریقوں میں کسی قسم کا تنازع نہیں ہے۔ جس وقت مندر میں پوجا ہوتی ہے اس وقت شاہی مسجد عیدگاہ سے اذان نہیں ہوتی، اور جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت مندر میں گھنٹے نہیں بجتے۔ دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر دونوں ہی فریقوں میں زبردست بھائی چارہ قائم ہے، اس لیے یہاں کے کئی اہم روزگار دونوں ہی فرقے کے لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ ایسے میں زبردستی تنازع کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے سوٹ دائر کرنے والوں سے اپنی سوٹ واپس لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 3 متنازع زرعی بلز کو منظوری دے دی، جن پر بالخصوص پنجاب اور ہریانہ میں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر جمہوریہ نے کسانوں کی پیداوار، تجارت اور کامرس کے فروغ سے متعلق بل، کسانوں کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے، نیز قیمتوں کی یقین دہانی و زرعی خدمات سے متعلق بل اور ضروری اشیاء ترمیمی بل کو منظوری دے دی۔ کسانوں کی پیداوار اور تجارت کے فروغ سے متعلق بل کا مقصد منڈیوں کے باہر زرعی پیداوار کی فروخت کی اجازت دینا ہے۔ ہندوستانی فوج نے کئی دہوں کے سب سے بڑے فوجی لاجسٹک آپریشن میں ٹینکوں، بھاری ہتھیاروں، گولہ بارود، فیول، خوراک اور موسم سرما کے لیے ضروری سپلائی مشرقی لداخ میں بلند ترین علاقوں پر پہنچائی، تاکہ تقریباً 4 ماہ تک موسم سرما کی سختیوں میں وہ تیاری کی حالت میں رہ سکے۔ پارلیمنٹ میں منظورہ 3 زرعی بلز کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر بھوپیش باگل نے کہا ہے کہ اسمبلی کے آئندہ سیشن میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے باگل نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان بلز پر عمل آوری کے خلاف قانونی لڑائی لڑی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے ایک ایسے وقت چور دروازے سے یہ بلز منظور کیے ہیں جب ملک کورونا وائرس کی وبا سے لڑ رہا ہے اور میڈیا بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے کیس کی رپورٹنگ میں مصروف ہے۔ باگل نے کہا کہ ریاست کی کانگریس حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ کی پابند ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر اما بھارتی نے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے لیے مثبت پائی گئی ہے اور کوارنٹائن ہو گئی ہے۔ اما بھارتی نے ان سے رابطے میں آنے والے افراد سے کہا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور پروٹوکول پر عمل کریں۔ اما بھارتی نے گزشتہ رات ٹویٹر پر کہا کہ انہیں بخار تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کووڈ-19 ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ مثبت آئی ہے۔
बीजेपी का साथ छोड़ें, किसानों का साथ दें। श्रोमणी अकाली दल के एनडीए इत्तेहाद से अलग होने के बाद कांग्रेस ने दीगर पार्टियों को भी गैरत दिलाई। कहा कि अब भी वक्त है, तमाम पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हो जाएं, वरना किसान इनको भी माफ नहीं करेंगे। हरियाणा और पंजाब में तहरीक और तेज करने का ऐलान किया गया है। दीगर रियासतों में भी किसानों की तहरीकों को हिमायत मिल रही है। वेस्टर्न रेलवे में पटरियां पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने 36वें यौम तासीस के मौके पर यमराज मुहिम का आगाज किया। इसके जरिए बांद्रा, अंधेरी, राम मंदिर, मलाड और बोरपल्ली रेलवे स्टेशनों के साथ पटरियों के करीब आबाद झोपड़ियों के करीब आरपीएफ ने मुहिम चलाई और इसे यमराज मुहिम का नाम दिया। इस दौरान आरपीएफ जवानों के साथ एक शख्स यमराज की छबिया अपनाकर लोगों को पटरियां पार न करने का पैगाम देता रहा। एक पाकिस्तानी बेटी ने हिंदुस्तानी नौजवान से शादी के तकरीबन 32 साल बाद हिंदुस्तानी शहरियत हासिल कर ली है। इन्हें हिंदुस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट दिया गया है। 3 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान की बेटी शहरियत हासिल करने के बाद बहुत खुश नजर आ रही है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला जलबम के गुलजारी कॉलोनी की फाकरा नूरैन बिनते आफ्ताब आलम की शादी 1988 में बुलंदशहर के मामिन चौकी के नसीम के साथ हुई थी। शादी के दौरान फाकरा को तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म वीज़े पर हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी गई थी। इन्हें तवील मुद्दती वीज़े में तौसी करानी पड़ती थी। फाकरा के मुताबिक उन्होंने शादी के बाद ही हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वो शहरियत हासिल नहीं कर सकी। गुज़िश्ता रोज़ फाकरा को इत्तला मिली कि मरकज़ी हुकूमत ने इन्हें शहरियत दी, इसलिए लखनऊ से एक सर्टिफिकेट भी बुलंदशहर LIU के दफ्तर को भेजा गया है। फाकरा को पुलिस ऑफिस तलब किया गया। यहाँ SSP संतोष कुमार सिंह ने फाकरा को हिंदुस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट दिया। पूर्वांचल के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और इनके हामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद योगी हुकूमत ने मगरबी उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मीना बजरंगी के कत्ल के किलेदी मुलजिम सुनील राठी के 3 मकानों और गाड़ियों को सीज कर दिया है। पुलिस ने सुनील राठी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत खर्की की कार्रवाई की है। राजस्थान में असातिज़ा की भर्तियों में गैर रिजर्वेशन हामियों को पूर्ण करने का मुतालबा करते हुए मुसलसिल चौथे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी है। मुजाहिरीन ने उदयपुर के खड़वाड़ा पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से वो तमाम सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अहदेदारों ने कबायली अवाम के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की। इसी दौरान खड़वाड़ा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मुश्तइल अफराद ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों को नजरातिश किया है। पुलिस अफसर ने बताया कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियों से फायरिंग करना पड़ा। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने मरकज से रैपिड एक्शन फोर्स का मुतालबा किया है। चीन की वजारत खारजा ने इसके सिंगयांग इलाके में हजारों मसाजिद को मुस्वार करने की खबरों को गुमराहकुन करार दिया और कहा कि ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। थिंक टैंक ने कहा था कि सिंगयांग में 24,000 मसाजिद हैं। 2017 से हुकूमत की पॉलिसी के तहत इन मसाजिद में से 16,000 मसाजिद को मुस्मार किया गया या इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मीडिया में ये खबरें भी आ रही है कि चीनी हुकाम यगूर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। ये खबरें हद तक आमेज खबरों के सिवा कुछ नहीं है। सऊदी अरब के वजीर बराए हज व उमरा डॉक्टर मोहम्मद बिन सालेह बिन तन ने कहा है कि उमरा सीजन में मोतमदीन पर सख्त पाबंदियां होगी। जिन मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा ज़्यादा पाई जा रही है वहाँ के शहरियों को उमरा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। सऊदी वजीर हज ने कहा कि किसी भी शख्स को क़वायद व ज़वाबित पर मबनी इक़दामात के बगैर मस्जिद हरम जाने नहीं दिया जाएगा। उम्रे के लिए आने वालों को कोविड-19 से महफूज होने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। बैनुल-अक़वामी यूनियन बराए उलमाए दीन के सेक्रेटरी जनरल अल-शेख अली अल-क़रादाग़ी ने कहा कि इस्लाम को कमज़ोर करने और मुसलमानों को तालीमी, समाजी, मुआशी और सियासी तौर पर तबाह करने की नीयत से अब तक कई मिहाज़ों पर कोशिशें होती रही है। अब एक नई कोशिश इब्राहिम फेथ के उन्वान से शुरू करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात बहरीन ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ और ममालिक की ये दोस्ती इस्लाम की बुनियादों को खोखला करने का मौजब बनेगी। UAE, बहरीन और इजराइल के दरमियान मुआहदों को अमेरिकी सरपरस्ती में इब्राहिम कार्ड पीस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। खुदावंद पसंद मुल्क अफगानिस्तान में जहां ख्वातीन की जानिब से खेलों में हिस्सा लिए जाने को भी मायूब समझा जाता है, वहां पहली बार बाहिजाब ख्वातीन के लिए फिटनेस क्लब कायम कर दिया गया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक माजी में तालिबान के गढ़ रहने वाले अफगानिस्तान के जनूबी सूबा खंदार के दारुल हुकूमत में फिटनेस क्लब कायम किया गया है, जहां बैक वक्त 50 ख्वातीन वर्जिश कर सकती है। खंदार में फिटनेस क्लब का क़याम ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली समाजी रहनुमा 36 साला मरियम दरानी की जानिब से किया गया, जो ख्वातीन का एक खुसूसी रेडियो स्टेशन भी चलाती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आज़म हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्रिकेट ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते।
नरेंद्र मोदी के बरसर इख्तिदार आने के बाद से हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात मुसलसिल बद से बदतर होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता साल दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए थे कि सरहदों पर फौजें तैनात कर दी गई थी। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में नई इबादत गाहों बशमुल मस्जिद, मंदिर और चर्च के तामीरी कामों का अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आगाज हो सकता है। हुकूमत ने मुनहदिम की गई दोनों मसाजिद को इसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। इसके अलावा एक मंदिर और चर्च भी तामीर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने तामीरी कामों के आगाज़ के सिलसिले में ओहदेदारों से मुशावरत की और सेक्रेटरीट में मलबे की सफाई के कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर अक्टूबर में तामीरी काम के आगाज़ का मंसूबा रखते हैं। सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए टेंडर तलब किए गए हैं, जिसको खतियत अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुमकिन है। तेलंगाना के खानगी स्कूलों की जानिब से दशहरे के बाद स्कूलों के आगाज़ पर फैसला किया जाएगा। रियासत में ऑनलाइन तालीम के आगाज़ के बावजूद तालीम को बाकायदा बनाने में दुश्वारियों से निपटने खानगी स्कूलों की जानिब से दशहरे के बाद फैसले की तौक़े है। खानगी स्कूलों के जिम्मेदार ऑनलाइन तालीम से मुतमईन नहीं है, क्योंकि इसके सबब स्कूल इंतजामिया को कई मुश्किलात का सामना है और फीस वसूली में भी दुश्वारियाँ होने लगी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की क़यादत में कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विलास अफजलपुर की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई। मरकजी और रियासती सतह के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नुमाइंदों के अलावा हैदराबाद कलेक्टर को कमेटी के रुकन की हैसियत से शामिल किया गया है। अंदरून एक माह कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिदायत दी है। शहर और मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता दिनों की बारिश के नतीजे में तकरीबन ज़ख़ायर आब और तालाब वगैरह लबरेज होते जा रहे हैं। शामीरपेट तालाब की सतह आब में भी अब बतदरीज इजाफा होने लगा है। इस झील में भी खातिर ख्वाह पानी का बहाव आने लगा है। कहा गया है कि गुज़िश्ता 4 बरस से ये तालाब तकरीबन खुश्क होने के करीब पहुँच गया था। ताहम अब गुज़िश्ता 2 दिनों से शामीरपेट तालाब की सतह आब में भी इजाफा होने लगा है। इस तालाब की मुकम्मल सतह आब 32 फीट है और इसमें पानी की सतह 20 फीट तक पहुँच गई है। मोइनाबाद की मुस्लिम लड़की की इस्मत रेज़ी और इसे खुदकशी पर आमदा करने के वाक़यात में मुलविस दरिंदा सिफत मुलजिम टीआरएस लीडर को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस लीडर मधु यादव को आज पुलिस ने हिरासत में लेकर इसकी तफ्तीश की और बादशाह इस केस की दफात में तरमीम करके इस पर दीगर एक्ट नाफिज करते हुए जेल भेजा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मोइनाबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर की अदालत में रिपोर्ट पेश करके दफात में तरमीम की। महलूक मुस्लिम लड़की की कम उम्र बहन ने मोइनाबाद पुलिस से वारदात के बारे में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने इब्तिदा में ताज़रात हिंद की दफ़ा 354, 306 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इस वाक़े के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के नतीजे में पुलिस ने दफात में तरमीम करके मुलजिम मधु यादव जो टीआरएस लीडर है इसके खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 376, 306, 354 और जूनियर जस्टिस एक्ट की दफ़ा 75 और 89 के तहत मुलजिम को गिरफ्तार किया है। लड़की ने 25 सितंबर को मोइनाबाद के इलाके हिमायत नगर मंडल में वाक़े मधु यादव के मकान के कमरे में खुदकशी कर ली थी और इसे आम खुदकशी करार देकर मधु यादव ने पुलिस को ये कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि लड़की ने पेट में शदीद दर्द के नतीजे में इंतहाई इक़दाम किया है। अदालत में दाखिल पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मधु यादव चंद दिनों से हालत नशे में इस लड़की को ही नहीं बल्कि इसके अफराद ख़ानदान को भी धमका रहा था। मोइनाबाद इस्मत रेज़ी केस के मुलजिम टीआरएस लीडर मधु यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुस्लिम कायदीन मुश्ताक मलिक, ख्वाजा बिलाल अहमद और दूसरों ने मोइनाबाद में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और शहर हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के करीब मुख्तलिफ ख़वातीन तंजीमों की जानिब से भी मुजाहरा किया गया और हाथों में प्लेट कार्ड थामे हुए मुलजिम को फांसी दो और हमें इंसाफ चाहिए का नारा लगा रहे थे।